Good evening, student. This is a new chapter, redox reaction. Redox means this is RED. Red means reduction and ox means oxidation. Okay. Now there is a redox reaction. This is the oxidation and reduction reaction is also named. Oxidation, this is a classical method. Today I explain in Zoom classes. Addition of oxygen and removal of hydrogen. This is a classical method definition. Suppose you write down the definition with classical method. The addition of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation. This is a classical method. Okay. Okay. Now Al plus O2 देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. Now the balance reaction 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3. Okay. Now removal of hydrogen, देखो यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है वाटर के फॉर्म में. तो दिस इज अ क्लासिकल मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड द मॉडर्न मेथड ऑफ ऑक्सीजन. नाउ सपोज अगर इसको समझना है, देखो नाउ LeO, L फॉर लॉस ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is O for oxidation. Clear, student? Loss of electron is oxidation. This is a short form. Okay, clear? Now the next. Increment in oxidation state of any element. देखो इसका मतलब क्या होता है. Now suppose you have copper plus charge and there is copper 2 plus charge. So copper plus charge means this, it is loses one electron and this is also loses another electron. तो देखो यहां पर मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो this is lose of electron. Lose of electron, this is called oxidation. अगर lose of electron होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट साइड में होगा. क्लियर स्टूडेंट? तो सपोज नेक्स्ट इज Na, simple Na. There is a 11 atomic number. Now Na lose one electron. तो plus charge means lose. So there's a 10 electron. So one electron is loses. So if Na plus charge is there, it means the total number of electron is 10. It is also a reaction of oxidation. Clear, student? तो देखो increment of oxidation state. यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है. This is also a increment. Increment मतलब oxidation state क्या हो रहा है? Increase. If oxidation state increase from reactant to product, it means this is oxidation. Clear? अब देखो यहाँ पे कितना है? 0 और यहाँ +1. देखो यहाँ पे already oxidation state increase हो रहा है. Clear? Now suppose you have Mg and there is Mg2 plus. तो Mg2 plus means it loses 2 electron. तो देखो यहाँ पे Mg का oxidation state 0 and there is +2. It is also oxidation state increases. तो increment of oxidation state is also known as oxidation. Clear? देखो oxidation number increases. Reduction, just opposite of oxidation. Now classical method, it is opposite. देखो this is a addition of oxygen, यहाँ पे removal of oxygen and addition of hydrogen. तो देखो removal of oxygen, यहाँ पे oxygen का remove हो रहा है देखो CO2 के फॉर्म में, and addition of hydrogen देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बना दिया? CH3 CS सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्कीन. इन द मॉडर्न मेथड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे समझोगे? सिंपल GER. G फॉर गेन, गेन ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रॉन is, and R for reduction. This is a short form. Okay, the gain of electron is reduction. Clear, student? Okay. Now the next, देखो there is a Cl2 plus 1 electron. इसको कैसे एक्सप्लेन करें? देखो now suppose half Cl2 का मतलब क्या होता है? देखो ये Cl और ये Cl कैंसिल, तो एक ही Cl है यहाँ पर, but the right method is half Cl2. अगर इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब इसके पास 17 + 1 कितना हुआ? 18. तो इफ any element contain negative charge,
इट मीन्स देयर इज 18 इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में, इट मीन्स gain of electron, and this is an example of reduction. Again, suppose you have half Br2. Again, it contains negative charge, to the formation of Br minus. This is also a reduction. Clear? Okay. Next, decrement in oxidation state of any element. देखो इसी में ही क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के ऊपर कितने चार्ज है? 0. और यहाँ पे क्या है? -1. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. 0 से -1 इट मीन्स डिक्रीज. यहाँ पे 0 to -1 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, यानी डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन. क्लियर स्टूडेंट? देख लो. ओके, क्लियर. यहां पे देखो इंक्रीज था, यहां पे क्या है? डिक्रीज. क्लियर. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज ऑन एनी एलिमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब देखो, सपोज यू हैव हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? H सिंगल बॉन्ड H. क्लियर. कैसे समझोगे? तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1. तो इनके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से क्या बना? सिंगल बॉन्ड. अब देखो ये हाइड्रोजन सेम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस H इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस H. जब सेम एलिमेंट होगा तो इसमें नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ना सपोज यू हैव HCl. तो अब देखो हमको पता है कि इन द पीरियोडिक टेबल, यू नो द पीरियोडिक टेबल. जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज. एंड टॉप टू बॉटम आते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज. क्लियर. तो HCl में देखो विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन. तो क्लोरीन के पास क्या टेंडेंसी होती है? अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट. तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? H के ऊपर पॉजिटिव एंड Cl के ऊपर नेगेटिव. तो यहां पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन. क्लियर. क्लियर स्टूडेंट? ओके, क्लियर. ओके, ना यहां पे मैंने एग्जांपल दिया. सपोज ए और बी दोनों के ऊपर क्या? दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी. फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, O2, N2, इन सब में क्या होगा? देखो दोनों तरफ सेम एलिमेंट है. 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज सेम. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B. सपोज अभी जो एग्जाम्पल बताया था उसको उल्टा कर दो. HCl वाला Cl को इधर लिख दो और H को उधर लिख दो. एंड सेम एज दिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B. मतलब मान लो इसका इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? A वाले की. क्लियर स्टूडेंट? 100%. ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इज एलिमेंट्री स्टेट इज 0. देखो कोई भी एलिमेंट हो, सपोज अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री फॉर्म या जो भी मान लो. एलिमेंट्री मतलब हो गया एक ही एलिमेंट वाला, एलिमेंट्री. अब देखो ऑक्सीजन में ही अगर ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, तो देखो अभी मैंने आज बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट हो, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो अब हम इसी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे. तो लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज X. तो 2X 2 है ना. अब इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इज इक्वल टू 0. कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0. तो X इज इक्वल टू 0/2 इज ऑलवेज 0. तो कोई भी एलिमेंट हो, सपोज नाइट्रोजन हो, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम, सिंगल एलिमेंट का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सिंगल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? एलिमेंट्री.
एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, 0। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो आप सीधे बोलोगे 0। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, 0। क्लियर, ओके। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट में कौन सा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1। सपोज देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कितना आया, प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस। अब सेम एज ग्रुप 2 की बात करो, मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम 282 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और कौन सा चार्ज कंटेन करेगा, 2+। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। इन बॉन्डेड स्टेट, अगर बॉन्डेड फॉर्म में है, बॉन्डेड मतलब कैसे, अभी अगर Mg का पूछ ले डायरेक्टली तो 0 बोलोगे, लेकिन अगर पूछ ले कि LiCl में Li का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो डेफिनेटली इसको x मान लो, Cl का क्या होता है, -1। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू +1। तो ये बॉन्डेड फॉर्म में होगा तब Li का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, अगर सिंगल है तो 0। क्लियर, ओके। ग्रुप 2 का भी यही है। अब देखो हाइड्रोजन शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव बोथ द कैरेक्टर। कैसे पहचानोगे, देखो यहां पे समझो फिर से। देखो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल मतलब कौन सा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ है, तो ये ऑक्सीजन यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, अगर ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, यानी इनके साथ अटैच्ड है, तो ये यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल की तरह। क्लियर। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच्ड है, यानी सपोज NaH, MgH2, दिस इज सोडियम हाइड्राइड, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो सोडियम इज अ मेटल, तो यहां पे हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा, यहां पे हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर अगर हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करे और नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, तो यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, और यहां पे अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है यानी मेटल के साथ अटैच्ड है, तो यहां पे हाइड्रोजन का होगा -1। इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। हाइड्रोजन नॉट शो इन फिक्स पोजीशन, हाइड्रोजन शो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव बोथ द कैरेक्टर। देखो अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। तो हाइड्रोजन शो बोथ द कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। फिर से समझो, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करेगा, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड है तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, ओके। यही चीज लिखा है यहां पर। क्लियर, ओके। नाउ ऑक्सीजन, देखो अब ऑक्सीजन का अलग अलग फंडा है, आज मैंने बताया था। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड से है, ऑक्साइड मतलब ये सब फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इसमें ऑक्सीजन -2 की तरह बिहेव करेगा, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, पर ऑक्साइड में होगा -1। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का ओनली वन एग्जाम्पल KO2, ये दिमाग में रख लो। KO2 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड, इसका होता है -12। और अगर फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है ऑक्सीजन, तो यहां पे +1 की तरह करेगा O2F2 में, और फ्लोरीन OF2 के साथ है तो +2 की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल देखो, जस्ट वेट। देखो अगर आपके पास एग्जाम्पल आ रहा है H2SO4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 × 2, सल्फर को X मान लो। यहां पे ऑक्सीजन का होता है क्या, फिर प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4, तो एनी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0, तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई +6। यहां पे ऑक्सीजन का हमने क्या रखा है -2। अब यही चीज अगर आपका H2O2 में होता तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर 2 ऑक्सीजन ऐसे लिंक है तो दिस इज अ पेरोक्साइड, याद रखो, दिस इज अ पेरोक्साइड फॉर्म।
तो यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का फाइंड करना है हमें। तो हाइड्रोजन इज 1, तो 1 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2x, 2 ऑक्सीजन है तो 2x इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो हो गया 2x इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा -1। देखो ऑक्सीजन में कितना आ रहा है -1। दिस इज पेरोक्साइड एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड करना है तो देखो KO2, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड। अब हमें इसमें ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो K का पता ही है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो 1 + 1, दिस इज 2x इज इक्वल टू 0। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, नाउ x इज इक्वल टू -12। और अगर ऑक्सीजन O2F2 के साथ है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया, तो यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज का होगा और ऑक्सीजन किस चार्ज का होगा, पॉजिटिव। यहां से भी पता चल रहा है, आप कैसे देखो, इसको 2x कंसिडर कर लो, 2 ऑक्सीजन है, फ्लोरीन का कितना होता है -1, तो 2 है तो इंटू 2, कोई चार्ज नहीं 0, तो 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई +1। यानी ऑक्सीजन के कौन कौन से स्टेट मिल रहे हैं आपको अभी बताता हूं मैं। एंड द नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल OF2, OF2 का क्या होगा, ऑक्सीजन को फिर से x मान लो, फ्लोरीन कितना होगा 2 है तो -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई +2। नाउ ऑक्सीजन शो -2 फॉर ऑक्साइड, -1 फॉर सुपर ऑक्साइड, this is peroxide, -1 for peroxide and -1/2 for superoxide। ये 3 चीज याद रखना है। और अगर ये 2 एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें ऑक्सीजन क्या शो करता है, +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऑक्सीजन के कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, -2, -1, -1/2, +1 and +2। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट, ये चीज मैंने यहां बता दिया। अब यही चीज है कि अब याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी, वैलेंसी ऑलवेज इन पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसको एक तरीका है, पहले तो मैं आपको सिंपल मेथड से एंड देन आफ्टर स्ट्रक्चर से बताता हूं। देखो सल्फर, अब सल्फर का हमें सल्फर इन SO2 में फाइंड करना है। तो S को मान लो X, 2 ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड वर्ड से क्लियर हो गया, इसका -2 होगा, तो -2 इंटू 2, कोई चार्ज नहीं तो 0, तो X -4, तो X की वैल्यू क्या आ गई +4। क्लियर स्टूडेंट? ओके, सेम एज SO3 के लिए भी करेंगे। अब देखो सल्फर, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, सल्फर का -2 +2 +4 एंड +6। अब सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का या 6 का, तो ये याद रखना जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता। जैसे सल्फर है 6 ग्रुप का, तो 6 से ज्यादा नहीं करेगा। अब क्लोरीन -1 +1 +3 +5 और +7, अगर इससे ज्यादा आंसर आ रहा है इसका मतलब रॉन्ग होगा, या इसके अलावा कोई वैल्यू आ रही है। क्लियर? अब देखो, आज मेरे लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने, जैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल H2SO5। अब सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +6, इससे ज्यादा नहीं शो कर सकता। अब अगर आप फाइंड करोगे तो इसका +8 आ रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। तो इसके लिए ये कुछ स्ट्रक्चर जो है, कुछ फॉर्मूले जो होते हैं डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आप लोग सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, अभी मैं यहां बता दे रहा हूं। तो देखो इसको कैसे समझना है, S के बाद O देन H एंड देन डबल बॉन्ड O, 3 हो गए, 4 एंड 5। देखो मैंने अभी बताया था कि अगर ऑक्सीजन इस फॉर्म में मिले तो दिस इज पेरोक्साइड। तो ये दोनों ऑक्सीजन किसके हो गए -1 के, और ये 3 ऑक्सीजन किसके हो गए -2। तो आप कैसे करोगे, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2, सल्फर को X मान लो। अब इसमें 3 ऑक्सीजन किसके हैं, -2 वाले हैं, 1 2 3, तो -2 वाले हैं, और ये 2 ऑक्सीजन किसके हैं, -1 वाले।
तो देखो कैसे करोगे, प्लस -2 वाले कितने हैं 3, प्लस -1 वाले कितने हैं 2, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 2 प्लस x -6 -2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई +6। देखो बेटा दिस इज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में समझना है तो देखो शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं। अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां पे लिखता हूं, HOSOOH। अब यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। अब यहां से अगर बिना मेथड के अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ले, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर कर दो -1, इसके ऊपर +1, क्योंकि ये से इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना। क्लियर। अब देखो यहां से ऑक्सीजन, इसका भी -1, इसका +1। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सल्फर, टेल मी। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पहले आता है फिर सल्फर आता है, तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन देन सल्फर। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इसके ऊपर -1 है तो इसके ऊपर क्या आएगा +1, अगर इसके ऊपर -1 है तो इसके ऊपर क्या आएगा +1। देखो सल्फर का देखो +1, यहां भी +1। अब यहां पे देखो 2 बॉन्ड है तो इसके ऊपर क्या आएगा -2, इसके ऊपर क्या आएगा +2, इसके ऊपर 2 बॉन्ड है तो इसका -2, इसका +2। तो टोटल प्लस चार्ज काउंट करो कितने आ रहे हैं, 2 3 4 5 6। इसको क्लियर मैं यहां बताता हूं। देखो नेक्स्ट पेज में देखो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो ये दोनों तो पेरोक्साइड है। अब देखो ऑक्सीजन इन सब से मतलब नहीं है। देखो ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है तो -1, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है तो इसके ऊपर क्या आएगा +1। सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है तो -1, इसके ऊपर +1। यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड है 2, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2। यहां भी 2 बॉन्ड है तो -2, दिस इज +2। तो देखो कितने चार्ज हो गए प्लस के, काउंट करो +6 आ रहा है। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, बट यू अप्लाई ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड के लिए यही मेथड यूज करना है जो मैंने अभी पीछे बताया। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? ओके। नेक्स्ट फॉर, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, अब सपोज एक एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो Fe शो वेरिएबल वैलेंसी +2 and +3, Fe show variable valency +2 and +3, and copper and Pv also show +2 and +4 valency, sorry +3, and copper show +1 and +2 oxidation state। ठीक है, तो देखो इसके लिए देखो समझो क्या है। अगर Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, इन दोनों के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आया तो रॉन्ग। तो देखो Fe को 2x कंसिडर कर लो। क्लियर। ऑक्सीजन है, फेरस ऑक्साइड है तो ऑक्साइड वर्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन के लिए -6, कोई चार्ज नहीं 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई +3। इट मीन्स दिस योर मेथड इज राइट। अब सपोज ऐसा फॉर्मूला आ जाए Fe3O4, दिस इज अ राइट फॉर्मूला Fe3O4। तो देखो इसको निकालो तो ये हो जाएगा 3x, हो जाएगा -8, 4 है तो 0, तो 3x इज इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू आ गई 8/3। देखो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, बट ये जो आंसर है इसको बोलेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एग्जाम में एवरेज पूछता है तब ये आंसर है, लेकिन अगर सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे तो कैसे करोगे। देखो Fe3O4, अगर ये सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से 100% राइट है। क्लियर। नाउ Fe3O4, अब देखो इसके लिए क्या है, इसको आप इस फॉर्मूले को पहले आप कन्वर्ट करोगे। कैसे, देखो
FeO डॉट Fe2O3 इस फॉर्म में लाओगे पहले इसको। अगर इस फॉर्म में लाओगे देखो तब 100% आंसर आएगा। अब देखो इस Fe को अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। इसमें ऑक्सीजन का कितना होता है -2, इसका आएगा क्या +2। अभी इसका आंसर निकाला था कितना आ रहा था +3। तो देखो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe, तो आप इसका आंसर दोनों लिखोगे +2 एंड +3। क्लियर 100%। ओके अब देखो अभी लास्ट में आज जूम क्लासेस में मैंने बताया था H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब देखो सिंपल अगर आप उस मेथड से निकाल रहे हो तो वो भी राइट है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर से आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले याद रखो कि फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हमेशा रहेगा। और यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है 4, 2, 3, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन को तीनों के साथ अटैच कर दो। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन पे कितना है सिंगल बॉन्ड, तो इसका -1, इसका आएगा +1, इसका -1, इसका आएगा +1, इसका -1, इसका आएगा +1, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो -2 +2, काउंट करके देखो +5 आ रहा है। और सिंपल मेथड से भी करोगे तो +5 ही आएगा। अब सिंपल देखो H3PO3 पूछता है, इसमें भी P का निकाल के देखो सिंपल मेथड से जो मैंने बताया अभी। ऐसे देखो P के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होगा और इधर एक OH, एक OH और एक होगा H। अब 3 ऑक्सीजन हो गए ना। तो देखो यहां से भी देखो ऑक्सीजन का -1, इसका +1, इसका -1, इसका +1। अब हाइड्रोजन और फास्फोरस में कौन सा ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फास्फोरस, तो इसका होगा -1, इसका होगा +1, इसका होगा -1, और यहां पर +2 -2 और इसका होगा +2। तो देखो प्लस वाले कितने 2, 3, 4 में से एक माइनस हुआ, कितना बचा 3 +3। अब इसका ऐसे निकालो तो हो जाएगा 3 हाइड्रोजन 1 into 3, 3 into 1, फॉस्फोरस को x मान लो और ऑक्सीजन का हो गया -6। तो देखो कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है आपका। यहां से देखो 3 यहां से हो गया +x -6, तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +3। इससे भी सही है, इससे भी। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक एंड दिस इज अ कैलकुलेशन ट्रिक। क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और भी आप अपने बुक से देखना, कुछ यहाँ पे अदर भी एग्जाम्पल है। अब सपोज अगर आपसे कोई पूछता है H2S2O8, तो आपको मैंने अभी बताया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा नहीं होगा। अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चलो उसी मेथड से। 2 + 1 + 2x, ये हो जाएगा 8 है तो 16 इज इक्वल टू 0। तो 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ रही +7। इट मीन्स दिस मेथड इज रॉन्ग। तो हर मेथड तो रॉन्ग इस मेथड से कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए क्या किया जाए, देखो इसके लिए भी स्ट्रक्चर ही मेन इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब जैसे इसमें कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए, मान लो आपको स्ट्रक्चर ना याद हो, तो आप याद रखना कि इसमें 2 ऑक्सीजन क्या होंगे, पेरोक्साइड होंगे। अब 2 ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड है तो देखो कैसे करोगे, H2S2O8, दिस इज अ मार्शियल एसिड, इसको मार्शियल एसिड बोलते हैं। तो देखो 1 into 2, ये हो जाएगा 2x। यहां पे कर दो 6 ऑक्सीजन को कर दो -2 से, और प्लस 2 ऑक्सीजन को कर दो -1 से। अब करके देख लो, आंसर आ जाएगा 2 + 2x -12 -2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई +6। ठीक है, अब मैं टेबल तुम लोग को टेबल में बना के भेजता हूं, सबके एलिमेंट्स प्लस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बैलेंसिंग रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, थैंक यू।